Hello students, good morning. Welcome my channel. Myself Dr. D. K. Sinha with new topic, and today's topic is transcription. Okay, transcription means formation of RNA on DNA template is called transcription. Okay, formation of RNA on DNA template is called transcription. Simply we can say formation of RNA from DNA is called transcription. You know, DNA consists of two strands. Both are anti-parallel in nature, having complementary base. Okay, it means bases are present in paired form. 1, 3 prime, 5 prime, 5 prime, 3 prime. Okay. Out of these two strands of DNA, only one strand participates in transcription. दोनों में से किसी एक ही स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन होगा. एनी वन स्ट्रैंड एक्ट्स एज टेम्पलेट. ओके, इट मीन्स आउट ऑफ two strands of DNA, only one strand participates in transcription. Okay, and the strand that participates in transcription is called template strand. Template strand is also called non-coding strand. Template is also called non-coding. आगे हम देखेंगे उसको non-coding क्यों कहते हैं. अब देखिए, in these two strands, one strand acts as template strand and participates in formation of RNA. ठीक है, बात आती है कि आखिर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम क्यों नहीं करता है, दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है. तो रीजन है, क्वेश्चन अगर देखें, why both strand of DNA not participates in transcription. ओके, क्यों नहीं दोनों पार्टिसिपेट करता है, एक ही से ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है. तो रीजन देखिए. फर्स्ट रीजन, सपोज दैट बोथ स्ट्रैंड फॉर्म्स आरएनए इन दिस वे. सपोज दैट, मान लिया कि यह स्ट्रैंड भी एक बना दिया डीएनए, यह स्ट्रैंड भी एक डीएनए बना दिया. अब देखिए, अगर इस डीएनए स्ट्रैंड पर इधर ए है तो यहां टी होगा, यहां सी है तो जी होगा. सॉरी, दूसरा कलर से लिखते हैं, क्लियर होगा, गलत नहीं है. कलर चेंज करता हूं. अगर यहां ए है तो टी है, सी है तो जी है, जी है तो सी है, टी है तो ए है. These are the nitrogenous bases of DNA. And RNA formed on DNA strand has complementary base of DNA. तो जब complementary base होगा तो A यहां है तो यहां T in RNA T is absent, so U is present, यहाँ U होगा. C है तो G होगा,
G है तो C होगा, T है तो A होगा. And in this RNA, A, C, G, T. Okay. Now see, these two new RNA strands are complementary to each other. इधर A है तो इधर U है, C है तो G है. It means newly formed two RNA strands are complementary to each other. In this case, both complementary RNA strands combine together and forms double-stranded RNA. And form double-stranded RNA, and due to formation of double-stranded RNA, formation of protein is not possible. Protein is not possible. तो एक रीजन तो ये हो गया कि क्यों नहीं करता है. सेकेंड रीजन इज देखिए, सेकेंड रीजन इज यू नो each gene is responsible for formation of special types of protein. Okay, each gene is responsible for formation of specific proteins. Suppose that any protein such as insulin is a protein or hormone. Okay, insulin को बनाने वाला ये जीन है. अब देखिए इस आरएनए का बेस सीक्वेंस, सपोज दैट दिस इज आरएनए फर्स्ट, मान लिया जाए ये आरएनए फर्स्ट है और ये आरएनए सेकंड है. ठीक है ना. इसका बेस सीक्वेंस ए सी जी टी और इसका बेस सीक्वेंस यू जी सी ए. ये बनाएगा एक अलग प्रोटीन, सपोज दैट प्रोटीन फर्स्ट एंड इट फॉर प्रोटीन सेकंड. It means one gene, if both a strand of DNA acts as template and both participates in formation of RNA, then one gene forms more than one types of proteins. Okay, in this way only one strand of DNA participates in transcription. Now see reason. First reason why both strand DNA not participates in transcription. तो पहला रीजन देखें, two strands of RNA formed will be complementary to each other, forming double-stranded RNA, and double-stranded RNA not able to translate. Translate means formation of protein. Protein synthesis is also called translation. Okay. And second is single gene will start to form more than one type of RNA, then more than one type of protein will be formed from single gene. एक ही जीन से एक से अधिक तरह का प्रोटीन का फॉर्मेशन भी हो जाएगा. इस कंडीशन में कहते हैं कि दो स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है. क्लियर. ओके. नेक्स्ट, एंजाइम्स participates in transcription process. You know, in cell mainly three types of RNA are present: ribosomal RNA, transfer RNA, and messenger RNA. And for formation of a specific RNA, a special type of enzyme is responsible. Okay, so transcription occurs with the help of RNA polymerase enzyme. इसके पहले हम लोग रिप्लिकेशन में देखे थे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए से डीएनए बनने में डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से आरएनए बनने में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. ओके. एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑफ थ्री टाइप्स: आरएनए polymerase first, second and third. RNA polymerase first, RNA polymerase second, RNA polymerase third. RNA polymerase first forms responsible for formation of ribosomal RNA except 5S rRNA. Okay. Ribosomal RNA also consists of more than one types of RNA.
5s, 5.8, 5.8s, 18s, 16s, 23s, 28s प्रोकैटेगोरिक में, ठीक है। सो फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइबोसोमल आरएनए, सेकेंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ HNRNA, heterogeneous nuclear RNA, and it is the precursor of messenger RNA. It means by a splicing process, HNRNA gets converted to messenger RNA. So simply we can say second is responsible for the formation of messenger RNA and third is responsible for the formation of tRNA and 5 जो यहाँ छूटा था 5s राइबोसोमल RNA. Third is also responsible for snRNA. snRNA means a small nuclear RNA. It combines with proteins and forms SNRPs, a small nuclear ribonucleotide proteins that participates in a splicing or processing of hnRNA. Okay, so these three types of enzymes participates in transcription process. These three types of polymerase enzyme present in eukaryotes while in prokaryotes only one type of RNA polymerase present, and this one polymerase RNA polymerase is responsible for the formation of all types of RNA. जितनी भी तरह का RNA बनेगा प्रोकैरियोट्स में एक ही एंजाइम के द्वारा बनेगा. ओके, नाउ इन प्रोकैरियोट्स RNA polymerase consists of mainly 5 polypeptide chain. 5 polypeptide chain, and these 5 polypeptide chains are commonly called core enzyme. These 5 polypeptide chain commonly called core enzyme. और 5 polypeptide कौन कौन होगा? 2 alpha, 2 beta and 1 omega. 5 polypeptide chain, 2 alpha, 2 beta, 1 omega, and these 5 commonly called core enzyme. Core enzyme combines with sigma factor and forms RNA polymerase. It means core enzyme plus sigma factor is equal to RNA polymerase. Okay, and this is the condition for prokaryotes, not for eukaryotes. In prokaryotes, sigma factor is present. In eukaryotes, more than one protein factors are present. More than one protein factors are present, called protein factor 1, protein factor 2, protein factor 3. Okay. Sigma factor of prokaryote is responsible for the recognition of initiation factor in promoter region. Okay, responsible for initiation factor in promoter region. Sigma factor is
responsible for recognition of a start signal in promoter region। अब नया टर्म आ गया प्रोमोटर रीजन, आगे हम देखते हैं। प्रोमोटर रीजन पार्ट है जीन का। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स मोर देन वन प्रोटीन is responsible for recognition and initiation called transcription factor, that is called transcription factor, such as ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड, etc। ठीक है। अब हमको देखना है कि आखिर यह जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है डीएनए के किस पार्ट पर हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो कैसे का प्रोसेस तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आगे हम देखेंगे पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उसका नाम क्या देंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज ए पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए और रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट part or segment of DNA which take parts in transcription is called transcription unit and it has three regions. Transcription unit consists of mainly three parts. Okay, अब तीन पार्ट कौन है ध्यान दें। Suppose that this is DNA strand, double stranded DNA strand, DNA structure 3 prime to 5 prime, 3 dash to 5 dash one strand, other 5 dash to 3 dash. Okay. At one end, first region promoter is present and opposite end, at opposite end terminator is present. Okay, एक एंड पर प्रमोटर और दूसरे एंड पर टर्मिनेटर। And between the promoter and terminator स्ट्रक्चरल जीन, यहां से यहां तक पार्ट हो गया स्ट्रक्चरल जीन का। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट इस पार्ट से होगा, हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन पॉइंट। ओके, अब देखिए कि यहां से ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन और इसके पहले है प्रमोटर। इन प्रमोटर 10 और 20 बेसेस आर प्रेजेंट। In promoter 10 or 20 bases are present. 10 in case of prokaryotes, 20 in case of eukaryotes. Okay, and these 10 or 20 bases present in promoter is commonly called Tata box
और प्रिब्नो बॉक्स, हॉगनेक्स बॉक्स, कई नाम दिया गया। इसी को हम जैसे कहें प्रोकैरियोट्स में नाम देते हैं प्रिब्नो बॉक्स, टाटा बॉक्स, और हॉगनेस बॉक्स। हॉगनेस और प्रिब्नो साइंटिस्ट का नाम था। टाटा मीन्स सीक्वेंस ऑफ बेसिस, सीक्वेंस ऑफ बेसिस, जनरली इन प्रोकैरियोट्स TATAAT, TATAAT, और अगर यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो कंटिन्यू मिलेगा TATATAT, 20 बेसिस इन 10 बेसिस। अब देखिए टी किस कंडीशन पर है, इस एंड पर है या इस एंड पर है। अब इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो न्यू आरएनए स्ट्रैंड बनेगा वह 5 से 3 की ओर बनेगा। अब मान लें कि अगर हम इस पर बनाते हैं तो यहाँ जो न्यू बनेगा ये 5 है, और यहाँ न्यू बना तो न्यू क्या हो जाएगा, ये 5 है तो 3' हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो 3 से 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं बताया ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज 5' टू 3'। अगर हम इस पर नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करें, सपोज डेट 3 प्राइम है, अपोजिट 5 प्राइम, इसका अपोजिट एंड 3 प्राइम, इस डायरेक्शन 5' टू 3'। It means in out of 2 strand of DNA, this strand is responsible for formation of RNA transcription, and जिस पर बनेगा उसका नाम क्या बताया हमने, that is called template strand, that is called template strand, and opposite is called non-template strand, non-template strand. So this is called template strand 3' to 5', template 5' to 3'। ठीक है। अब देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, एंड द कोड प्रेजेंट इन आरएनए इज एज लाइक नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो भी आरएनए बनेगा उसका कोड नॉन टेम्पलेट के जैसा होता है, एक्सेप्शन एट द प्लेस ऑफ टी यू इज प्रेजेंट। टी के जगह पर यू होगा, बाकी सारा का सारा कोड जो होगा नॉन टेम्पलेट के जैसा होता है। सो नॉन टेम्पलेट इज ऑल्सो कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, अब जरा सा देख लीजिए कैसा क्यों कहे, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको हम यहां से। चलिए डीएनए स्ट्रैंड का बेस लिखते हैं। ए सी जी टी, ए सी जी टी, सपोज दैट बेस इज प्रेजेंट ऑन वन डीएनए स्ट्रैंड, और इसका अपोजिट पर क्या होगा, अगर यहाँ ए है तो टी जी सी, ए का टी, ए का टी, सी का जी, जी सी, टी ए। ओके, एंड न्यूली फॉर्म्ड आरएनए हैज कंप्लीमेंट्री बेस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो कंप्लीमेंट्री बेस टी मीन्स ए, जी सी, सी जी, ए के जगह पर टी, थायमिन इन आरएनए थायमिन नॉट प्रेजेंट, सो एट दिस प्लेस यू इज प्रेजेंट। ए देखिए तो the code of newly formed RNA is as like this strand A C C G G U T A. All are similar, only one difference, at the place of T U is present. So this strand is called coding strand and this strand is called non-coding strand.
कोई प्रॉब्लम? जब भी वो बनेगा तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर बनेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट्री बेस होगा आरएनए में और कोडिंग स्ट्रैंड का सिमिलर बेस होगा आरएनए में। क्वेश्चन आता है कि कोई एक अगर डीएनए सीक्वेंस दिया हुआ है, मान लिया टेम्पलेट अगर दे दिया और कहा कि इससे जो आरएनए बना इस आरएनए का सीक्वेंस निकालिए, तो अगर टेम्पलेट दिया हुआ है तो उसका कंप्लीमेंट्री बेस निकाल लेंगे। अगर यहां नॉन टेम्पलेट दिया हुआ है तो सेम वही रह जाएगा, सिर्फ डिफर हो जाएगा टी के जगह पर ही। ओके, अंडरस्टैंड? एक पॉइंट और, जनरली प्रमोटर प्रोवाइड्स द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यहां से इस साइट पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और यहां से आगे बढ़ना शुरू करेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड पर आरएनए का फॉर्मेशन होते जाएगा। एंड एट अपोजिट एंड टर्मिनेटर इज प्रेजेंट। इन दिस रीजन मे बी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और पॉली ए बेसेज आर प्रेजेंट। या तो यहां पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का बेस होगा। पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है कि दोनों स्ट्रैंड का अपोजिट डायरेक्शन, सपोज दैट ए टी टी सी सी, सॉरी ए टी टी सी सी नहीं, ए सी सी टी टी कर दीजिए तो फिर हो जाएगा ए जी जी टी टी। नो, गड़बड़ है। देखिए पैलिंड्रोमिक जी ए टी टी सी, GAATTC। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड देखें तो क्या हो जाएगा CTTAAG। सपोज दैट दिस इज 3 to 5 एंड दिस इज 5 to 3। अगर हम दोनों स्ट्रैंड को इधर से अगर 3 से 5 पढ़े तो GAATTC, इधर 3 से 5 पढ़े GAATTC। दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, सो ऑन टर्मिनेटर, in terminator on terminator may be palindromic sequence or poly A sequence. Poly A sequence means many adenosine nucleotides, means deoxyribo adenosine monophosphate nucleotides are present. Okay, and terminator provides site of attachment, site for attachment of rho factor, site for attachment of rho factor, and rho factor is responsible for removal of RNA polymerase enzyme. यहाँ RNA polymerase enzyme जुड़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होते जाएगा। जैसे ही टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा वहां रो फैक्टर है, वह रो फैक्टर क्या करेगा, RNA पॉलीमरेज को अलग कर देगा और RNA पॉलीमरेज अलग हुआ मीन्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बंद हो गया, टर्मिनेट कर गया। ओके, नाउ सी 3 टाइप्स ऑफ जीन्स का फंक्शन देख लें, थोड़ा सा नोट कर लें। चलिए तीनों रीजन को थोड़ा नोट कर लें। फर्स्ट, प्रमोटर located at 3' end of template strand. It provides sites for attachment of ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज। दोनों का अटैचमेंट कहां से होगा, तो प्रमोटर से होगा। प्रमोटर कहां है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड पर। ओके, सेकंड, टर्मिनेटर सिचुएटेड एट 5' एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। इट हैज आइदर पैलिंड्रोमिक और पॉली सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक और पॉली सीक्वेंस। यहां मैं लिखा हूं, मैं अटैचमेंट साइट है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कॉल्ड टाटा बॉक्स। एटी रिच एरिया, टाटा बॉक्स मीन्स एटी एडेनिन एंड थायमिन रिच एरिया। उसके नाम बता चुका हूं, प्रेब्रो बॉक्स, हॉगनेस बॉक्स। एक में 10 बेस, दूसरा में 20 बेस। ओके, एंड टर्मिनेटर, देयर इज ए साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ रो फैक्टर and the function of rho factor, it is responsible for release of RNA polymerase from transcription unit and is also responsible for termination of transcription। ट्रांसक्रिप्शन को बंद करने के लिए
terminator responsible. And third is area of template strand involved in transcription. जिस स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिसके कोडिंग के अनुसार मैसेंजर आरएनए या आरएनए का कोड बनेगा, वह कहलाएगा क्या? स्ट्रक्चरल जीन. यूकैरियोटिक में यह मोनोसिस्टोनिक होता है, ओनली वन आरएनए बनाएगा, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक मेनी आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल स्ट्रक्चरल जीन. ओके, ये हुआ जनरली इंट्रोडक्शन कहिए या फिर कुछ प्रोसेस कहिए. मेन प्रोसेस कल हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है और कैसे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ओके.